Jai Hind guys, welcome to this video. My name is Saurav, as you all know. I have cleared CAP of 2024 examination and scored 28th rank. मुझे काफ़ी सारे messages आ रहे थे and everyone was asking me what can be done in this last month. आपका एग्ज़ाम 1 महीने बाद है and everyone is in quite a rush and everyone is trying to improve upon their scores. So I thought it's better if I share it here on YouTube so everybody can take advantage of it. So today I am going to share what I did in my last 1 month while I was preparing for CAPF examination. So I will be taking things one by one and covering each and every section as how I tackled. So bear with it and listen to it. And I always say prepare your own unique strategy. Take points from others, it's good, but it has to be according to your needs and your preparation. So I would first start with the background. So I come from army background, so hardcore defense, as you can see, and I have been giving ND examination. I have cleared CDS multiple times, both IMA as well as OTA and FCAT examination. So the foundation has always been there. So basics मेरे covered है. मैंने NCERTs करी हैं पहले. I have done the लक्ष्मीकांत and I have done other books, Spectrum. So वो चीज़ें मैंने जो CDS के लिए करी थी अपनी preparation. I think that has helped me a lot during this CAPF. So this was my background. So I had a decent base to begin with for the CAPF preparation. In last 1 month, what I did was firstly I have to analyze myself. So paper one self-assessment is the most important thing that you can do. बिकॉज आपको भी पता है कि पेपर वन इज़ द की. पेपर टू इज़ अ सब्जेक्टिव पेपर जहाँ पे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे कहीं ना कहीं वो एक एग्जामिनर पे भी डिपेंड होता है. इंटरव्यू अगेन वेरी सब्जेक्टिव. सो ओनली प्लेस वेयर यू कैन स्कोर गुड मार्क्स एंड दैट इज़ इन योर कंट्रोल, दैट इज़ पेपर वन. सो पेपर वन में सबसे पहले आपको एक असेसमेंट चाहिए. उसके लिए आप लास्ट ईयर का जो आपका CAPF का पेपर है दैट इज़ 2024. मैंने 2023 का पेपर को यूज़ किया था एंड मैंने वो अटेम्प्ट किया फ्रॉम टेक्स्ट बुक. एंड जब मैंने वो किया सो मुझे एक अंदाज़ा लगा. आई थिंक आई रिमेंबर आई स्कोर्ड 114 एंड द कट ऑफ वाज 118. सो आई वाज okay, I was all right with it because I thought, okay, I'm close to the cutoff and with little more of preparation, I can do it. So after that, I started, improving upon my subjects. So I knew that I had the base covered. So then what you have to do is you have to find out where are your weak areas, where are your strong areas. So you have done this assessment. Which part you are attempting the most question, which part where you are unable to grasp any of the question. You have to know, you have to analyze that and then classify your subjects. Like what are your strong subjects? For me, it was polity, science, maths, and reasoning. These were my strong base subjects where I could not afford to lose even a single point or single marks. So that's what I did. So these were my strong subjects. Then what were my weak subjects? That were history and my current affairs. That was very weak. देन नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कि हमारे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमने हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं है एंड बहुत हम वीक भी नहीं है. वी स्कोर डिसेंट इन दो सब्जेक्ट्स दैट आर फॉर मी इट वाज इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी. So for you also you have to classify your subjects into these categories and then you have to prepare accordingly. So मैं जो सजेस्ट करता हूँ या फिर जो मैंने अपने टाइम पे किया कि मेरा जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो कहीं पे भी मैं उसमें पीछे नहीं रहना चाहिए. सो आई फोकस्ड ऑन माई स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट वेरी स्ट्रांगली and I tried to improve upon my weak subjects. I did selective approach. For example, if history is not my forte, so what I will do, I will try to grasp only those important topics which have considerable higher weightage. For example, history में आपका modern, medieval उतना ज़्यादा weightage नहीं रख पाता है एंड इवन आपने पढ़ लिया है उसके बाद भी आप श्योर नहीं हो सकते हो कि आप कितना ज़्यादा उसमें से स्कोर कर पाओगे बिकॉज बहुत ज़्यादा डेप्थ है. सो मैंने क्या किया था, आई चोज द मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट और मॉडर्न हिस्ट्री में भी मैंने स्पेशल फोकस दिया कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे लाइक सोशल रिफॉर्मर, देन आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस, देन आपके रिवॉल्यूशनरीज. सो ये जो टॉपिक्स थे ये इंपॉर्टेंट बेस बनते हैं एंड इन्हीं से आपके ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं. So even if I am able to attempt 2-3 questions from the history, then it's all right because I have not given too much time upon it. So ये मेरा पहला अप्रोच रहा मेरे वीक सब्जेक्ट्स को लेके. करंट अफेयर अगेन आई डिड द सेम थिंग बिकॉज करंट अफेयर इज वास्ट. यू कैन नेवर कवर इट ऑल.
but I tried to do it in a selective approach. For example, I chose certain magazines where there is a monthly compilation, and those monthly compilation help me get a basic knowledge about what is happening in the world. सो वो सोर्सेस मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे बताऊँगा। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता बिकॉज़ मैंने उनकी कहीं से इधर-उधर से अरेंज किए थे। सो आप चाहो तो मैं आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन दूँगा। यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माय टेलीग्राम चैनल। नेक्स्ट हमारे पास आता है न्यूट्रल सब्जेक्ट्स, जो मेरे बैलेंस सब्जेक्ट हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। अब इसमें क्या होता है कि आपको स्मार्ट रिवीजन करना है। आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं देना है एंड आपको ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल आपको छोड़ना है ये सब्जेक्ट। तो मैं क्या करता था, जो मेरे पास पहले से नोट्स थे मेरे प्रिपेयर्ड या फिर मेरे पास जो मटेरियल था, मैंने उसी को कंटीन्यूअसली रिवाइज़ किया, जितना हो सके। मीन्स यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट टू मच टाइम इनटू इट, यू जस्ट हैव टू बी क्विक इन योर रिविजन। ज़्यादा मत सोचो, अगर आपको लगता है यू आर नॉट एबल टू रिटेन, दैट्स कंप्लीटली ऑलराइट। जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे, आप क्वेश्चंस देखोगे एंड व्हेन यू लुक एट दोज़ ऑप्शंस, इट विल क्लिक, डेफिनिटली इट विल क्लिक। सो जस्ट कीप ऑन रीडिंग इट वन्स और ट्वाइस व्हेन यू कैन फाइंड टाइम। मीन्स अगर 4 दिन में, 3 दिन में अगर आप एक बार रिवाइज़ कर पाते हो, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। उससे आपका एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी उन सब्जेक्ट्स के लिए। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारे के सारे अटेम्प्ट कर पाओगे, बट आप एक डिसेंट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स करोगे उसमें। सो दैट वाज़ माय फॉर ऑल दीज़ 3 सब्जेक्ट्स, 3 कैटेगरीज़ दैट आई हैव डिवाइडेड माय सब्जेक्ट्स इंटू। सो आपको इस तरह से अपनी एक अप्रोच लेनी चाहिए, ये मेरा सजेशन है। अगर आप कुछ और अप्रोच फॉलो कर रहे हो, आप डेफिनिटली कर सकते हो। Because as I have said, everyone has their own unique strategy and you have to follow that strategy. Don't go rushing onto different strategies. If you find that I have made some a good point and that suits your requirement, take it and improve upon those. That's सो नेक्स्ट अगर मैं बात की बात करूं कि हमारे पास पेपर वन के लिए प्रैक्टिसिंग कैसे करी जा सकती है, तो सबसे पहली प्रैक्टिसिंग का जो तरीका है जो मैंने निकाला था, दैट वाज द पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज आर द बिगेस्ट एसेट दैट यू हैव ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। दे आर अवेलेबल ऑनलाइन ऑलवेज, सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं आपके पास, आपके बहुत सारे ऐप्स हैं जहाँ पे आपको ये मिलता है। सो लेट मी बी वेरी क्लियर दैट पीवाईक्यूज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको देखने हैं, आपको एनालाइज करने हैं, आपको देखना है कि रिसेंट यूपीएससी में क्या ट्रेंड चल रहा है। और जब आप पीवाईक्यूज करते हो, तो आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि सीएपीएफ के ही पीवाईक्यूज करने हैं, बाकी जो यूपीएससी के बाकी के एग्जाम्स होते हैं, जैसे डिफेंस के रिलेटेड सीडीएस आप लिख सकते हो, इवन आपका सीएससी के भी आप जीएस के क्वेश्चंस आप देख सकते हो एंड उनमें से एनालाइज कर सकते हो कि किस टाइप का पैटर्न आज के टाइम पे पूछा जा रहा है, एंड देन यू कैन फोकस ऑन दोज एस्पेक्ट ऑल्सो। सो दैट इज़ वेरी क्रूशियल। नेक्स्ट जो मैं मानता था एंड जो मैंने किया था, दैट इज़ मेकिंग अ वेरी 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 क्रिस्प नोट्स। मैं आपको शो करूँगा स्लाइड पे, एंड जैसे कि आप देख सकते हैं, ये कुछ मेरे नोट्स थे। एंड ये जो नोट्स हैं मेरे, ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैंने इस तरीके से बनाए कि कोई और इनको पढ़ेगा तो उसको कुछ समझ ही नहीं आ सकता, बट दीज आर ओनली फॉर मी। सो दीज आर द वेरी क्रिस्प नोट्स विच आई मेड, विच कैन बी रिवाइज्ड इवन ऑन द लास्ट डे। मैं सुबह एग्जाम देने जाने से पहले भी इनको पढ़ सकता हूँ, अगर मेरे को 1-2 घंटे का टाइम मिलता है आराम से पढ़ सकता हूँ। सो दैट्स वाई आई मेड दोज नोट्स। सो यू हैव टू ट्राई टू मेक सिमिलर काइंड्स ऑफ नोट्स इफ यू कैन, इफ यू आर कंफर्टेबल विद इट। और फॉर मी दे वर ग्रेट हेल्प। जब आप लास्ट मिनट में रिवाइज करने जाते हो एंड आपके पास एक मोटी-मोटी कॉपियाँ पड़ी हैं एंड यू फील दैट इट्स टू मच, नाउ आई कैन नॉट रिवाइज इट ऑल। आई ऑल्सो हैव दोज़ काइंड ऑफ नोट्स ऑल्सो, बट वो आपके काम नहीं आते। वो आप लॉन्ग टर्म में अभी आप पढ़ सकते हो उनको, लेकिन लास्ट टाइम पे आपके काम नहीं आएँगे। सो मेक इट क्रिस्प, मेक इट सच दैट इट इज़ ओनली अंडरस्टैंडेबल टू यू, एंड उन्हीं चीज़ को लिखिए नोट्स में, जो चीज़ आपको पता है कि आप भूलते हो बार-बार। जो चीज़ बहुत कॉमन है, आपको याद रहती है बाय हार्ट, डोंट राइट दोज़ थिंग्स ऑन द पेपर। ये आपका टाइम वेस्ट करेगा, आपका पेज वेस्ट करेगा, आपका बहुत सारा मतलब एफर्ट जाता है उसमें, ठीक है? सो ये मेरा एक मंत्रा था जब मैं पेपर 1 के लिए प्रिपेयर करता था कि आई हैव टू बी रिवाइजिंग इफ आई कैन, और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिवाइज अगेन एंड अगेन, बट यू हैव टू डू इट। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है पेपर 2। आपको पता है पेपर 2 इज़ सब्जेक्टिव, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पेपर 2 में ये है कि आपको कंप्लीट करना है पेपर 2। अगर आप कंप्लीट करते हो, एंड आई फील इफ यू हैव अ डिसेंट राइटिंग, देन यू विल गेट अ डिसेंट एवरेज मार्क्स, एंड दैट्स इनफ फॉर योर क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन, अगर आप पेपर 1 में भी अच्छा स्कोर कर रहे हो। सो आपको सिर्फ क्या करना है कि अपनी टाइमिंग पे ध्यान देना है, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस। इसमें ऐसे राइटिंग इंपॉर्टेंट है, आर्गुमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, एंड जब आप इनको लिखोगे, सो यू हैव टू गेट इट इवैल्यूएटेड। यू हैव टू गेट इट इवैल्यूएटेड फ्रॉम समबडी एल्स, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव आपको पता है, बट यू नीड सर्टेन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स
जो आपको सिर्फ दूसरे ही दे सकते हैं। इसमें आप अपने दोस्तों की मदद ले सकते हो, आपके कोई सीनियर्स है पहले से, कोई हैं जिनका सिलेक्शन पहले हुआ है, वो आपकी अगर हेल्प कर पाएँ, आपकी सिस्टर, आपकी फादर, आपकी मदर, आप किसी को भी हेल्प ले सकते हैं एंड डू इट। बिकॉज़ इवैल्यूएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसको नेगेटिवली मत लें कभी भी एंड टेक इट पॉजिटिवली। अगर कोई पर्सपेक्टिव आपको नया मिलता है इवैल्यूएशन के बाद किसी और से, सो एक्सेप्ट इट और उसको इनकलकेट कीजिए अपनी राइटिंग में अगली बार। एंड धीरे-धीरे इससे आपकी टाइमिंग भी बनेगी, आपकी स्पीड भी बनेगी एंड आपको ऑर्गनाइज़ करना आएगा कि आप ऐसे को कैसे ऑर्गनाइज़ कर सकते हैं। देन अगर मैं बात करता हूँ कि मैंने एक पर्टिकुलर चीज़ की थी, दैट इज़ आई गिव अ फुल लेंथ 2023 मॉक। मीन्स मैं बैठा पूरी मैंने एक टाइप से ए4 शीट्स लिए एंड आई कंप्लीटली मार्क्ड इट लाइक हाउ इट इज़ डन इन यूपीएससी सीएपीएफ। सो उस कॉपी को प्रिपेयर किया, स्टेपल किया ए4 पेजेस को एंड आई जस्ट सैट फॉर 3 आवर्स एंड आई ट्राइड टू कंप्लीट my entire paper in that 3 hour limit and I managed somehow. At the very last moment I completed my complete paper. So जब मैंने वो किया एंड देन उसके बाद मैंने उसको रिवैल्यूएट करवाया अपनी बहन से, अपने दोस्त से, सो आई गॉट मोर पर्सपेक्टिव। एंड जब मैं ये कर रहा था, वन थिंग विच आई एक्स्ट्रा डिड, दैट इज कि मैंने हर एक सेक्शन में देखा कि मैं कितना टाइम ले रहा हूँ। एंड जब वो कंप्लीट हुआ पेपर एंड जब मैं एनालाइज कर रहा था अपने राइटिंग को, तो मैंने ये भी ध्यान में रखा कि मुझे किस सेक्शन में कितना टाइम लेना है। एंड अगर मैं वो चीज़ नहीं कर पाऊँगा, वहाँ पे घर से नहीं करके जाऊँगा, तो वहाँ पे मोस्ट लाइकली मेरे प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बनेगी। सो आई मेड अ परफेक्ट टाइमिंग कि मुझे प्रेसी राइटिंग में इतना ही टाइम देना है, रिपोर्ट राइटिंग में मुझे एक रिपोर्ट इतने में लिखनी है एंड देन फर्दर ऐसे मेरे को इतने टाइम में लिखना है। सो ये मेरी एक स्ट्रैटेजी हुआ करती थी। सो यू हैव टू बी मेकिंग सम सॉर्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी फॉर दैट। आप मेरी वाली स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने एक फिक्स टाइम किया था। सो वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपके पास कोई और तरीका है आप करना चाहते हो, आप ऑब्वियसली उसको फॉलो कर सकते हैं, बट ऑलवेज कीप टाइम मैनेजमेंट इन माइंड बिकॉज़ यू हैव टू बी वेरी, वेरी एफिशिएंट विद इट। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि जब हम पेपर लिखते हैं, सो बहुत लोग बोलते हैं कि कंटेंट क्या रखें एंड उसमें डेटा डालना है, फैक्ट्स डालना है। सो आई वाज़ नॉट वेरी रिच इन फैक्ट्स। मैं सच बताता हूँ, मेरा करंट करंट अफेयर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। मेरे पास उतने फैक्ट्स नहीं होते थे ऑन द स्पॉट, ऑन द मोमेंट। आई ऑल्सो डिड नॉट हैड टू मच टाइम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सीएपीएफ, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। सो मैंने क्या किया? सो मैंने बहुत ही क्रिस्प नोट्स बनाए एंड कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स लिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डिजिटल इम्पोर्ट्स पे मैंने एक फैक्ट लिखा था। डिजिटल सर्विस डिलीवरी का जो इंडिया में इम्प्रूवमेंट हुआ है, उस पे लिखा था। गिग इकोनॉमी हो गया, देन आपके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हैं, जीडीपी, नीति आयोग की रिपोर्ट आई थी एक ग्राउंड वाटर पे एंड उसी पे रिलेटेड ग्राउंड वाटर वाटर स्कैरसिटी समथिंग एक टॉपिक भी आ गया था हमारे पेपर में। सो मैंने वहाँ पे वो कोट किया। सो यू हैव टू मेक सम क्रिस्प नोट्स इफ यू आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग इन दैट फैक्ट ज़ोन। अगर आपका फैक्ट एंड डेटा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपने इतना याद पहले से नहीं किया है, सो आपको एक छोटा-छोटा एक पैकेज तैयार करना है। मीन्स आई मेड 4 पेज नोट। मीन्स एक दिन पहले मेरे पास वो अवेलेबल थे। मतलब मैंने 1 हफ्ते पहले बना लिए थे एंड मैंने उसको कैलकुलेट किया कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एंड आई हैव टू कीप दीज़ इन माइंड, क्योंकि ज़्यादा तो मैं रख नहीं सकता था। सो आई जस्ट केप्ट इट शॉर्ट एंड क्रिस्प। सो इसी को आप अपने एसेज़ में एंड आपकी रिपोर्ट राइटिंग में भी अगर कहीं पे यूज़ होता है, आप डाल सकते हो उसको एंड एसे इन पर्टिकुलर आपका यूज़ होता है ये। सो इसको आपको ध्यान में रखना है। देन हमारे पास होता है कि एग्ज़ाम डे में क्या करना होता है एंड जब मैं एग्ज़ाम डे में गया तो मैं 1 दिन पहले पहुँच चुका था एंड उस दिन मैं फ्रेश था। अगले दिन सुबह मैं सेंटर टाइम पे पहुँचा। इवन तो बारिश हो रही थी उस दिन, मुझे याद है, बट मैं सेंटर पहले ही टाइम से पहुँच गया था। मैं बैठा हुआ था। आई नो आई वाज़ सिंगिंग द सॉन्ग, आई वाज़ ट्राइंग टू काम माय माइंड। लोग रिवाइज़ कर रहे थे वहाँ पे बहुत सारे बच्चे एंड बट आई फेल्ट लाइक कि आई डोंट नीड दैट बिकॉज़ लास्ट टाइम पे मैं बिल्कुल अपने माइंड को हेक्टिक सिचुएशन में नहीं डालना चाह रहा था। ओवरलोड नहीं करना चाहता था। सो आई ट्रस्टेड व्हाट आई हैव प्रिपेयर्ड एंड आई स्टेड देयर, आई वाज़ सिंगिंग द सॉन्ग, आई वाज़ ट्राइंग टू calm my mind as much as possible. So that was my strategy on that day. And then when the exam started, I told myself that I have prepared well and I have to do it. So that was a very important part which I followed कि मुझे आराम से कामनेस के साथ देखना है पेपर। जब भी मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था फॉर पेपर 1, आई वाज़ वेरी श्योर अबाउट इट कि अगर कोई क्वेश्चन अटकता है, आई डोंट नो, आई फील अनफैमिलियर, आई विल लीव इट। एंड देन सेकंडली आपका जो मैथ्स का पार्ट होता है, यू हैव टू वेरी एफिशिएंट इन दैट मैथ्स। सो मैं मैथ्स को मैंने पहले अटेम्प्ट नहीं किया। आई वेंट थ्रू द एंटायर पेपर and once I have done that, after that I came back to the maths and reasoning and then I solved those questions because मेरा कुछ भी छूटना नहीं चाहिए।
बहुत सारे मेरे साथ के फ्रेंड्स हैं एंड मैं कैंडिडेट से बात किया तो वो कह रहे थे कि उनका पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया, इवन पेपर 1 एंड दिस ईयर का। सो आई फेल्ट कि ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि कहीं न कहीं हम टाइम मैनेजमेंट में कुछ गलतियाँ कर रहे हैं। सो यू हैव टू अवॉइड दैट। सो आपको अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी है और ये स्ट्रैटेजी आपकी कहाँ से बनेगी? आपके मॉक टेस्ट से। आप अपना रिवीजन करते हो एंड रेगुलर मॉक टेस्ट देते हो, सो आपको एक तरीका मिलता है कि आप किस तरह से बेटर अटेम्प्ट कर पा रहे हो। बिकॉज़ अटेम्प्टिंग इज़ ऑल्सो अ स्किल जो आपको आती है जब आप प्रैक्टिस करते हो। सो यू हैव टू सी टू दैट। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्ज़ाम डे। तो आपको काम रहना है, कंपोज़ रहना है, टाइम का बहुत ध्यान रखना है एंड डोंट गेट स्टक अप ऑन वन पर्टिकुलर टॉपिक। सो ओवरऑल अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप क्या कर सकते हो इस पर्टिकुलर लास्ट मंथ में, सो मैं बोलूँगा रिवाइज़ करो जितने आप मल्टीपल रिविजन्स कर सकते हो अपने। एंड अगर आपके पास करंट अफेयर्स के नोट्स बनाए हुए हैं आपने, सो उसको रिवाइज़ करें। इफ़ यू डोंट हैव दोज़, यूज़ सम मंथली कंपाइलेशंस। आपको अगर सोर्सेज़ होंगे एज़ आई मेंशन मैं आपको बता दूँगा टेलीग्राम चैनल पे, दैट इज़ इट। और पीवाईक्यूज़ एज़ आई मेंशन्ड, मॉक टेस्ट यू कैन डू, एनालाइज़ योर मिस्टेक्स इन द मॉक्स। जो मॉक्स में आप सॉल्यूशंस देखते हो उनको पढ़ो, वो भी एक ग्रेट रिवीजन होता है एक टाइप का। कि जब मैं देखता था तो मैं इतना ज़्यादा रिवाइज़ शायद नहीं कर पा रहा था अपने नोट्स को, जो मेरे पुराने नोट्स थे। बट मैं क्या करता था, मैं जो सॉल्यूशंस देखता था ऑनलाइन जब मैंने मॉक्स दिए, सो वो सॉल्यूशंस आर काइंड ऑफ रिवीजन। उसमें करंट अफेयर्स भी मिल जाते हैं, उसमें हिस्ट्री का टॉपिक भी मिल जाता है, उसमें ज्योग्राफी भी मिलती है। सो दैट इज़ अ ग्रेट वे ऑफ रिवीजन। तो वो आपको करना है। नेक्स्ट पेपर 2, मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, डोंट चेज़ टू मैनी रैंडम टॉपिक्स। ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ये होता है कि आपको टॉपिक्स मिलते हैं, प्रोवाइड करे जाते हैं, सो डोंट गो ऑन दोज़ कि मैंने 100 ऐसे लिख लिए, 200 ऐसे लिख लिए। करिए, आप ऐसे लिखिए, अगर आप इतने लिख सकते हैं लिखो, बट अटेम्प्ट द पीवाईक्यूज़ ओनली। पीवाईक्यूज़ इतने आपके पास अवेलेबल हैं एसेज़ के लिए, आपके पास आर्गुमेंट राइटिंग के लिए, कि आप उनको करेंगे तो आपका बहुत अच्छा फाउंडेशन और बेस बनेगा एंड इवन प्रैक्टिस के लिए भी। सो डू दिस। और अगर आपके पास एक बार आपने खत्म कर लिया, आप कह रहे हो आपके पास बचे नहीं, इवन रीअटेम्प्ट दोस जो आपने बहुत पहले ही लिखे थे और सी व्हाट इम्प्रूवमेंट दैट यू हैव मेड। सो पीवाईक्यूज आर द की फॉर पेपर 2 आल्सो, यू हैव टू डू दैट। और रिवैल्यूएशन आपको चाहिए, आपको फीडबैक लेना है, अगर आप कहीं से ले सकते हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको कोई बहुत ही क्वालिफाइड इंसान चाहिए, नहीं, आप किसी से भी अपना फीडबैक ले सकते हैं एंड उसमें देख सकते हैं कि क्या इम्प्रूवमेंट आ सकती थी, क्या आपने कोई पर्सपेक्टिव मिस किया है, इज़ दैट इम्पॉर्टेंट, और क्या आप उसको ऐड कर सकते हो। एंड देन फाइनली जो मेरी एक मैं शॉर्ट टिप देना चाहूँगा कि दैट इज़ यू हैव टू बी गुड एट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बिकॉज़ अगर आपका रीडिंग स्पीड अच्छा नहीं है, आप कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से नहीं कर पाते हो, सो यू विल टेक लॉट ऑफ टाइम और उसमें आपका पेपर छूट सकता है, आप उसमें गलत कर सकते हो, केयरलेस हो सकते हो। सो ट्राई टू इम्प्रूव योर रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट फॉर दिस एग्जाम और फॉर एनी अदर एग्जाम, बिकॉज़ यूपीएससी अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करो जितना है। आजकल मॉक्स में भी ऐसे स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, पीवाईक्यूज़ में भी हैं। सीएसई के आपके पीवाईक्यूज़ भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपने रिसेंट टाइम में देखा होगा कि बहुत ही ज़्यादा लेंदी रीडिंग करनी पड़ती है ऑप्शंस को पढ़ने के लिए, एंड देन आपको समझ आता है कि अच्छा ये क्वेश्चंस हैं। एलिमिनेशंस हैज़ आल्सो बिकम वेरी डिफिकल्ट, सो आपको उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। सो कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड फाइनली मैथ्स और रीजनिंग में अपने टाइम वेस्ट नहीं करना है। यू शुड नो कि क्या आप सॉल्व कर सकते हो और क्या आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। एंड अगर कोई क्वेश्चन ज़्यादा टाइम ले रहा है, यू हैव टू मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। सो आप एक पे स्टक रह के नहीं कर सकते हो। मैथ्स के लिए मैंने एज आई से कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको फॉर्मूला याद होने चाहिए। मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं एंड फॉर दैट यू कैन यूज़ सर्टेन पीडीएफ्स दैट आर अवेलेबल ऑनलाइन। आप मुझे कांटेक्ट करेंगे, मैं टेलीग्राम में आपको पीडीएफ्स के लिंक्स भी दे दूंगा जहाँ से मैंने फॉर्मूलेज रिवाइज किए थे। मैं आईएमए के टाइम से फॉर्मूला पढ़ता आया हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा पीडीएफ की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट अगर कोई इंसान है या कोई ऐसा बैकग्राउंड से बच्चा है जिसने मैथ्स उतना ज़्यादा नहीं पढ़ा है, सो you can contact me. I will provide you with the correct PDFs and which you can revise 2-3 times and you will do great in your CPF exam. So that is the means my short tips finally. And just do it. Be very confident. Trust yourself and stay focused. और अपना टाइम मैनेजमेंट, दैट इज़ द की, एज आई ऑलवेज से। रिवीजन आप करते रहोगे, मुझे पता है ऑल ऑफ यू आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल एंड यू हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड। सो डू दैट एंड कीप प्रिपेयरिंग, बी कंसिस्टेंट।
एंड कंसिस्टेंसी इज़ द की, और कंसिस्टेंसी हमेशा नहीं रह पाती है, वी ऑल नो. Sometimes you feel that, okay, today I don't feel like studying. That's fine, it's a normal process. But then you have to push yourself. You don't have to be, get comfortable in that zone where you are saying that, okay, कल करूँगा. एक दिन ठीक है, अगर आपका मन नहीं है, you go outside and relax. But after that, you have to come back and sit. So that was it from my side. My entire preparation that I did in my last 1 month. स्पेसिफिकली मैं सेक्शन वाइज एक वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे ऐसे में इंप्रूव कर सकते हैं, आप कैसे पर्टिकुलर वे ऑफ अटेम्प्टिंग पेपर वन आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं. मैं उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियो होगी, बहुत ज़्यादा नहीं. एंड फॉर नाउ, जस्ट फॉलो व्हाट आई हैव टोल्ड यू. इफ़ यू रियली लाइक्ड माई एडवाइस एंड इफ़ यू फील कनेक्टेड टू इट, अगर आप उससे रिलेट कर पाते हो जो मैंने कहा है, दैट विल बी ग्रेट फॉर यू. एंड इफ़ नॉट, स्टिल फॉलो योर ओन स्ट्रैटेजी. आई ऑलवेज मैंशन और ऑलवेज से कि आपकी अपनी स्ट्रैटेजी जो होगी वो आपके लिए बेस्ट होगी. बट इट्स ऑलवेज ओके टू टेक पॉइंट्स फ्रॉम समवेयर एल्स. आई हैव टेकन इट. मैंने बहुत जगह लोगों से पॉइंट्स उठाए हैं, एडवाइस ली है, एंड आई थिंक इनकलकेटेड देम इनटू माय ओन शेड्यूल एंड माय प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. उसमें बहुत सारे टीचर्स हैं, कभी टाइम मिलेगा मैं उनका नाम भी लूँगा एंड उनसे उनके बारे में भी आपको साथ डिस्कस करूँगा. बट फॉर नाउ दिस इज़ इट. एंड ऑलवेज कीप वर्किंग हार्ड. एंड आई एम वेटिंग टू सी यू ऑल इन यूनिफॉर्म्स. जय हिंद.